Hallelujah. Praise the Lord, everybody. हालेलुया सभी को प्रेज द लॉर्ड। And it's a great privilege and honor to be once again amongst you wonderful people. और फिर से ये सम्मान है कि हम फिर से आप लोगों के बीच में हैं And we are once again going to have a wonderful time of today's word. और आज के वचन से हम अद्भुत समय बिताने Let वाले us all हैं। welcome the Holy Ghost. आइए इस वक्त हम पवित्र आत्मा का स्वागत करें। Thank you, Lord my God. I give you the praise, I give you the worship, I give you the glory, I give you the honor, Lord. हे प्रभु, मैं आपको सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान, सारा धन्यवाद देता हूँ Blessed परमेश्वर। Holy Spirit of God, आश्रित पवित्र आत्मा, we come before the throne of grace and mercy, wonderful Father. हे परमेश्वर पिता, हम आपके दयासन के सामने आते And we हैं pray right now in Jesus' mighty name. और इस वक्त हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दुआ करते हैं। Forgive us of every sin that have come in thy sight. हमने हर एक पाप जो आपके दृष्टि में किया है परमेश्वर, हमें माफ कर। The Lord Holy Spirit of God, हे पवित्र आत्मा, thou art welcome in this place. हम आपका इस जगह में स्वागत करते हैं। In our people's homes, wherever they are listening to this video, Lord. और जो लोग इस वीडियो को सुन रहे परमेश्वर, उनके घरों में परमेश्वर, We welcome you, Lord my God. हम आपका स्वागत करते हैं Come परमेश्वर। mighty comforter, come mighty counselor, thou art welcome. आमान दिलासा देने वाले, आमान सलाह देने वाले, हम आपका स्वागत करते And हैं। blessed Lord my God, lead us as my prayer unto thee, O Lord. और आशीष प्रभु, हम यही दुआ करते हैं कि आप हमारी अगुवाई करो। Every yoke of darkness, every bondage of the enemy, every sickness, every infirmity, every disease, O Lord, that's holding upon their spirit, soul, body, mind, and life, Lord my God, upon their bodies, O Lord my God, abundant destroying, comes with the Father, the Holy Ghost, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth right now. और हाँ प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, इस वक्त हर अंधकार की जो परमेश्वर, हर अंधकार की बंधुआई परमेश्वर, हर बीमारी परमेश्वर, हर विकलता परमेश्वर, हर निर्बलता परमेश्वर, जो लोगों के जीव शरीर आत्मा मन बुद्धि जीवन के ऊपर प्रभावित है परमेश्वर, उन्हें जकड़े हुए पकड़े हुए परमेश्वर, मैं उनके आड़े आता हूं अभी नासरी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में And प्रभु। every yoke of darkness, every bondage of the enemy, abundant destroying, comes with the Father, the Holy Ghost, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Get out, God, in Jesus' mighty name. और हाँ परमेश्वर, हर अंधकार का जो हर अंधकार की बंधुआई परमेश्वर, मैं उन्हें आगे दे, चले जाओ, निकल जाओ अभी नासरी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। And beloved Holy Spirit of God, thou art welcome, Lord my God, thou art welcome in this place. और हाँ प्यारे पवित्र आत्मा, हम आपका इस जगह में स्वागत करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं Come mighty परमेश्वर। comforter, come mighty counselor, thou art welcome. आमान दिलासा देने वाले, आमान सलाह देने वाले, हम आपका स्वागत करते हैं And lead us is my prayer unto thee, O और Lord. हमारी अगुवाई करो, यही दुआ मैं आपसे करता Not I, but हूँ। you speak, O Lord, not Pastor Sunu, but you translate through him, Lord. मैं नहीं तो तू बोल परमेश्वर, और न पास्टर सुनो नहीं, लेकिन तू उनके द्वारा अनुवाद कर The परमेश्वर। Holy Spirit of God, you take charge right now. प्यारे पवित्र आत्मा, इस वक्त आप पूरी तरह से नियंत्रण And we है vow, Lord, like always. और हम हमेशा की तरह वायदा करते हैं All परमेश्वर। glory, honor, power, praise, and all the thanks, wonderful Lord Jesus, belongs to you, and you are for every single thing that the Holy Ghost shall do in this place. It's a promise, and we will keep it, O कि Lord. सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान, सारा धन्यवाद सिर्फ आप ही के नाम को जाएगा प्रभु यीशु मसीह। जो कुछ भी कार्य आपका पवित्र आत्मा इस जगह में करेगा प्रभु, It is our promise, ये हमारा वायदा है and we shall keep it. और वो हम रखेंगे। No man shall have your glory, and no flesh shall glory in your presence, O Lord. कोई भी मनुष्य आपके उपस्थिति में महिमा नहीं पाएगा परमेश्वर, कोई भी मनुष्य आपके उपस्थिति में गौरव नहीं पाएगा But you are परमेश्वर, not worthy, O Lord. लेकिन सिर्फ आप ही अकेले उसके योग्य और पात्र हो। In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, pray and we ask. नासरी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते और मांगते हैं, इसलिए तू सुन। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। So let us go on today's word immediately and let us enjoy today's word with great power. तो आइए इस वक्त हम आज के वचन में तुरंत ही चले जाएंगे और आज के वचन को हम बहुत आनंद लेंगे और लुत्फ उठाएंगे पूरे सामर्थ के साथ। Amen. Isaiah 54 and verses 1 onwards. Isaiah 54 and verses 1 onwards. आइए हम पढ़ेंगे यशायाह इसका 54वां अध्याय वचन 1 से आगे, यशायाह 54 1 से आगे हम I'll ask पढ़ेंगे। Pastor Sunu to read directly in Hindi. मैं पास्टर सुनो से विनती करता हूँ कि वो हिंदी में Verses 1 to verse 3. वचन 1 से वचन 3 तक, यशायाह इसका 54वां अध्याय वचन 1 से वचन 3 तक। हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर, तू जिसे जन्माने की पीड़ा नहीं हुई, गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक हो गए। यहोवा का यही वचन है, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए के नगरों को फिर से बसाएगा। Amen. Amen. Let us all pray. आइए इस वक्त हम सभी जन दुआ करें। Beloved Holy Spirit of God, मेरे पवित्र आत्मा, thou art welcome once again. हम फिर एक बार आपका स्वागत You करते take हैं। charge right now. इस वक्त आप नियंत्रण ले लो, Not I, but you speak. मैं नहीं तो तू बोल। Thank you for changing Logos into Rhema. धन्यवाद परमेश्वर कि आपने लोगोस को रेमा में परिवर्तित किया You है। take charge right now. इस वक्त आप नियंत्रण ले लो And help the people, Lord my God, to adapt to these times and change accordingly. और है परमेश्वर, आपके लोगों को मदद करो कि इस समयों के साथ वो चले और उस हिसाब से वो चले परमेश्वर। In Jesus' name I pray and I ask. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करता हूँ, मांगता हूँ, इसलिए तू सुन। Amen. 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 Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord.
परमेश्वर की स्तुति So हो। my topic today is once again we're in the series that is waiting for an opportunity. तो आज का जो मेरा विषय है वो हम फिर उस श्रृंखला में है मौके के लिए रुके रहना। And we are in part 6 today. और आज हम भाग 6 में हैं। And today, before I go into Isaiah chapter 54, which I had begun last week, और आज मैं यशायाह इसका 54वां अध्याय में जाने से पहले जो मैंने पिछले हफ्ते में मैंने शुरू किया था, we are going to just a bit, divert a bit for today. और सिर्फ आज ही के लिए हम थोड़े से अलग जाने वाले हैं। And we are going to focus on what is the required material to outshine the competition. और आज हम ये देखने वाले हैं कि किस चीज की जरूरत है ताकि हम कंपटीशन जो है उससे हम उभर कर आए। Amen. Amen. So let us go into Genesis chapter 39, everybody. तो इसलिए आइए हम उत्पत्ति इसका 39वां अध्याय में चले जाए। And let us read from verses 1 to verse 6. और आइए हम वचन 1 से वचन 6 तक पढ़ेंगे। My subtopic for today, मेरा आज का जो उपविषय है and that is favor. और वो है किसी का पसंदीदा होना। Amen. I repeat once again, favor. मैं फिर से दोहराता हूँ, किसी का पसंदीदा होना। Now, we are not going to read this, but I'm just going to go through the points. And when we go through the points, we'll read this particular scripture. और आज ये मैं पूरी तरह से पढ़ने नहीं वाला हूँ, लेकिन इसमें से जो मुद्दे हैं मैं वो देने वाला हूँ, और जैसे मैं ये मुद्दे आपको दूंगा उसमें से हम पढ़ते जाएंगे। Now here we see the incident of Joseph. He was brought down to Egypt, and then he was sold into Potiphar's house. और यहाँ हम देखते हैं कि यूसुफ जो है उसे मिस्र में लाया गया था, उसे बेचा गया था, और वहाँ पर वो पोटिफर के घर पे आया था। Now when he comes to Potiphar's house, अब जब वो पोटिफर के घर पे आता है, the Bible says in verse 2, बाइबल कहता है वचन 2 में, and the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. और यहोवा उसके संग था और वो सफल या समृद्ध पुरुष हो गया। Amen, amen, amen. Amen, And amen, then amen. we go to see that as we see in verse 3 onwards, और आगे हम देखते हैं वचन 3 से आगे, that how that he was, the Lord exalted Joseph in the house of Potiphar, and he became the master of the entire household of Potiphar. कि कैसे यहोवा ने यूसुफ को ऊंचा उठाया और वो पोटिफर के पूरे घर का वो मालिक बन गया। And then how Joseph we see that found grace in the sight of Potiphar. और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे यूसुफ पोटिफर के नजरों में वो अनुग्रह पाया। And then how he becomes the entire overseer. और उसके बाद हम देखते हैं उसके सारे मालमत्ता पर वो सब कुछ देखने लगा। And verse 6 declares, और वचन 6 ये घोषित करता है, and he left all that he had in Joseph's hand, and he knew not aught he had, save the bread which he did eat. And Joseph was a goodly person and well favored. सो उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था, और यूसुफ सुंदर और रूपवान था। Amen. Amen. Now, अब in today's times when we see everything into total chaos everywhere. और आज के समय में हम देखते हैं कि हर तरफ हलचल मची हुई है। And now when the lockdown is getting over step by step, और अब जब लॉकडाउन धीरे धीरे बंद हो रहा है, it is highly imperative that we all understand that how are we going to battle today's competition. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें ये समझना जरूरी है कि आज के कंपटीशन के साथ हम लड़ाई कैसे दें। Now, last time in the last series, that was जो डर गया समझो मर गया. और पिछली जो श्रृंखला मैंने ली थी, जो डर गया समझो मर गया, उस श्रृंखला में In that we saw that how David had to adapt to the situation. उसमें हमें देखना पड़ा कि कैसे दाऊद को उस समय में या उस स्थिति में खुद को उसे डालना पड़ा, And how he had to change himself. और उसको खुद को कैसे बदलना पड़ा। The old armory of Saul was not being useful. जो शाऊल का जो चिलकत और सब कुछ था जो वो लड़ाई के लिए इस्तेमाल करते, जो वस्त्र वो इस्तेमाल करता था, वो तो कुछ काम के नहीं थे। So then he had to change, and he had to change his entire methodology. तो इसी वजह से दाऊद को पूरी तरह से बदलना पड़ा उसको, और उसके कार्य को पद्धत को भी उसे बदलना पड़ा। He had to use something which was never used in war. उसे ऐसी चीज को इस्तेमाल करना पड़ा जो कभी युद्ध में कभी इस्तेमाल किया ही नहीं गया था। Now these are the times when our old normal is not going to function, is not going to be functional anymore. और अब वो समय है जो हमारे पुराने जो चीजें है वो अब आज के तारीख में इस वक्त में काम नहीं करने वाले। हमारे पुराने तौर तरीके आज के तारीख में काम नहीं करने वाले। If we have to, you see, today many people are losing their jobs. Understand this. देखो
आपको ये समझना है आज की तारीख में बहुत सारे लोग जो है उनके नौकरियां खो बैठ रहे हैं And the financial condition of the world is totally, it is getting totally worse now. और जग की पूरी आर्थिक स्थिति जो है वो पूरी तरह से बुरी होते जा रही है। And this was prophesied through my own mouth. The Lord spoke in the church and told the church that 2020 will be an year when the whole world, the financial whole state of the entire world is going to go into a very dire state. और परमेश्वर ने मेरे ही मुख के द्वारा कलीसिया में भविष्यवाणी ये दी थी कि 2020 ये साल में जो जगत की जो आर्थिक स्थिति है वो पूरी तरह से गिरने वाली है। Now this exactly, we are entering into that. और ये वही हो रहा है और हम उसमें प्रवेश कर रहे But हैं। also the prophetic word stated लेकिन भविष्यवाणी का शब्द ये भी बताया that anyone who is in the Lord and who has been sowing in the Lord is going to outshine, who's got a plan, who's got a purpose, who's got a focus, is going to be super rich. कि जो कोई भी परमेश्वर में है और परमेश्वर के राज्य में बो रहा है और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार उसके योजना के अनुसार बुलाया गया है, वो जो है वो बहुत 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 अमीर होने वाले हैं। In fact, the world record states this. और देखा गया तो कि जागतिक जो रिकॉर्ड है वो ये घोषित करता है All the biggest companies that we see today आज के तारीख में जो बड़े बड़े कंपनियां हम देखते हैं have been born in situations of dire financial crisis. वो ऐसे समयों में उनका जन्म हुआ है जब आर्थिक स्थिति जो है वो पूरी तरह से गिर गई है। One of the best examples is Harley Davidson. सबसे बेहतरीन उदाहरण अगर मैं दे सकता हूं तो वो है हार्ली डेविडसन So now, कंपनी का। people of God, तो अब परमेश्वर के लोग we need to understand from the word of God हमें परमेश्वर के वचन से ये समझना जरूरी है that how do we need to change in these times? कि इन समयों में हमें कैसे बदलना है। What do we need to do by which we will not just survive but we will excel and we will be highlighted? कि हमें क्या करना चाहिए कि हम बस सिर्फ जिंदा नहीं रहेंगे लेकिन हम ऊंचे भी जाएंगे और सबसे बेहतरीन बनेंगे। Yeah, the people will focus their eyes upon us. कि लोग जो है उनके पूरा ध्यान जो है हम पर लगाएंगे। We'll be the best of the best of the best. हम सबसे बेहतरीन के सबसे बेहतरीन रहेंगे। And people will, companies will not be able to survive or run without us. और लोग जो है और कंपनी जो है हमारे बगैर वो चल नहीं पाएंगे। So how do we do that तो now? हम वो कैसे करेंगे? Let us go into today's word and let us see what we can learn from the life of Joseph. तो चलिए आज के वचन में हम जाए और वचन से हम ये देखें कि यूसुफ के जिंदगी से हम क्या सीख सकते My हैं। subtopic today, once again I repeat out to you, it is favor. मेरा आज का जो उपविषय है मैं फिर एक बार आपको दोहराता और वो है किसी का पसंदीदा होना। Now, अब how will I outshine competition? आज के कंपटीशन में मैं कैसे उभर कर बाहर आ सकता हूँ? Amen. Point number 1. मुद्दा क्रमांक 1, Understand situation does not control my state. ये समझ लो कि परिस्थिति जो है मेरे अब के स्थिति को उस पर नियंत्रण नहीं करता। I repeat once मैं again. फिर एक बार दोहराता हूँ, Understand समझ लो situation does not control my state. कि परिस्थिति जो है आपके स्थिति पर नियंत्रण नहीं करती है। Let us read Genesis 39 and verses 1 onwards. आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति इसका 39वां अध्याय वचन 1 से आगे। And Joseph was brought down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, brought him of the hands of the Ishmaelites, which had brought him down thither. जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोटीफर नाम का मिस्री जो फिरौन का हाकिम और जल्लादों का प्रधान था, उसने उसको इश्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। Verse 2. वचन 2, And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man, and he was in the house of his master the Egyptian. और यहोवा यूसुफ के संग था और वह सफल या समृद्ध पुरुष हो गया और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। Now listen everybody. आप सभी जन सुनो, Look at the scenario. इस स्थिति के पास देखेंगे। Joseph was sold as a slave. यूसुफ को एक गुलाम करके बेचा गया था। Now listen, this is something, we are in a much more better state than Joseph. Okay? देखो अब ये सुन लो, हम यूसुफ से तो बेहतर स्थिति में हैं। We are not slaves, हम गुलाम नहीं हैं and now nor are we sold to someone. और ना ही हम किसी को बेचे गए हैं। Yeah, we have got our liberties. हमें पूरा
हमें पूरी आजादी मिली है, We have got all our rights. हमारे सारे हक हमारे पास है। Only that there is a corona looming around us. बस इतना ही, हमारे इर्द गिर्द कोरोना घूम रहा है। Now, the thing is this, that everybody is scared अब चीज ये है कि सभी जन डर गए हैं and everybody is in a part of the system called fear. और सभी जन उस प्रणाली के अंदर है जिसे हम भय कहते हैं। Now, अब how do we react to the situation? तो हम इस परिस्थिति को कैसे प्रतिक्रिया दें? Point number 1 is मुद्दा क्रमांक 1 ये है, understand situation does not control your state. समझ लो, ये समझ लो कि परिस्थिति जो है आपके स्थिति पर नियंत्रण नहीं करती, Yeah, because you are special. क्योंकि आप विशेष हो। Turn to somebody and say you are special. किसी के पास मुड़कर उनसे कहो आप विशेष हो। Now, अब when you know you are special, जब आप ये जानते हो कि आप विशेष हो, you also have to understand you have to live a life that is special. आपको ये समझना जरूरी है कि आपको ऐसी जिंदगी जीना है जो विशेष है। Yeah, that means what? इसका मतलब क्या है? Why are you special? आप क्यों विशेष हो? Because God is by your side. क्योंकि परमेश्वर आपके बाजू से खड़ा है। Now listen everybody. आप सभी जन सुनो, This makes the entire difference. यही तो सारी चीजों को अलग कर देती है। Yeah, this makes the entire weightage on your side. और यही तो आपका जो पल्ला है भारी कर देता है। Why? क्यों? Because you have got God on your side. क्योंकि परमेश्वर आपके बाजू से है। Now, see, the world today is scared. देखो आज दुनिया जो है पूरी तरह से डर गई है। Yeah, everything is in chaos. सब कुछ सभी जगह पे हलचल मची हुई है। Everything, is. I'll give an example. I'll just explain to you. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ और आपको समझाता हूँ। Supposing you are a person who's selling bananas, कल्पना करो आप केले बेचते हो and you are taking your vehicle, your cart to the market और आप आपके हाथ गाड़ी जो है वो आप मार्केट ले जा रहे हो to sell the bananas on your cart. ताकि आप वो जो केले हैं आप बेचें। Now all your bananas are awesomely beautiful. आपके सारे केले जो है वो अद्भुत है। Now everybody else in the market, और सभी जन जो मार्केट में है their bananas are all black in color उनके जो केले हैं सारे काले गिर गए हैं and they become all soggy. और बहुत ही नरम हो गए हैं। Now अब you have got a higher advantage, वहां पर आपका ज्यादा फायदा है and the advantage is this: और आपका फायदा ये है your bananas are all beautifully yellow in color. और आपके जो सारे केले हैं वो बहुत अद्भुत है और पीले दिख रहे But हैं। the problem with you is this: लेकिन आपके साथ समस्या ये है that you feel, कि आपको लगता है who will buy my bananas? कि मेरे केले कौन खरीदेगा? How will they buy my bananas? वो कैसे मेरे केले खरीदेंगे? If they don't see my bananas, अगर वो मेरे केले देखेंगे ही नहीं and तो, if they don't come near my cart only, then और अगर वो मेरे हाथ गाड़ी के पास आएंगे ही नहीं तो, and how will they select my bananas? तो मेरे केलों में से कैसे वो चुन के लेंगे? My God, my bananas are not, if they're not sold, then अरे मेरे केले अगर बेचे नहीं गए तो? see, you need to understand. देखो आपको ये समझना जरूरी है, Your bananas are yellow. आपके जो केले हैं वो पीले हैं, They are ripe. वो सही है, They are awesome. वो अद्भुत है, They are A grade. वो एक ग्रेड के हैं। And the people around the entire market, the sellers, और जो सारे बाकी जो बेचने वाले हैं their bananas are black. उनके केले तो काले हो गए But हैं। if you don't come inside, if लेकिन- you don't come into the competition, लेकिन अगर आप अंदर आएंगे ही नहीं, अगर आप उस कंपटीशन में घुसेंगे ही नहीं, how will people notice your higher advantage? लोग फिर आपका जो ज्यादा फायदे का है वो कैसे वो देखेंगे? How will you be highlighted? आप कैसे प्रकाश में आएंगे? Listen, Joseph was sold. He was sold as a slave. सुनो, यूसुफ को बेचा गया था, यूसुफ को एक गुलाम करके बेचा गया But था। if you read verse 2, लेकिन अगर आप वचन 2 पढ़ोगे, right from the day go, जिस दिन से जा या गया ऐसा कहा गया है, or the day start, जिस दिन जो दिन शुरू हुआ उस दिन से for his job in Potiphar's house, पोटीफर के घर में उसका जब काम शुरू हुआ उस दिन से the Lord was with Joseph and he was a prosperous man, the Bible says. वचन कहता है कि यहोवा यूसुफ के संग था और वह सफल या समृद्ध पुरुष हो गया। Now, everybody listen carefully. अब सभी जन ध्यान से सुनो। You need to understand that, whatever Joseph did, it went into prosperity. आपको ये समझना जरूरी है कि जो कुछ भी यूसुफ ने किया है वो सब कुछ समृद्ध हो गया या सफल हो गया। Instantly, he just, whatever he touched, it went to prosperity. तुरंत ही जो कुछ भी वो छूता था तुरंत वो सफल हो जाता। Now listen, अब सुनो, why was
his job not a failure? ऐसा क्यों हुआ कि वो जो कुछ काम करता था वो असफल क्यों नहीं होता था? Why was it not going, negative? क्यों नहीं वो नकारा क्यों नहीं होता था? It is simple. क्योंकि आसान है। His state around him was of a slave, उसके इर्द गिर्द की जो माहौल है वो गुलाम का था, but not his mind, लेकिन उसका मन नहीं, not his spirit. उसकी आत्मा नहीं। His spirit, his mind was with the Lord of liberty. उसकी आत्मा और उसका जो मन है वो परमेश्वर के आजादी में था। Now listen, everybody. आप सभी जन सुनो। That is what exactly. You should not allow the situation around you to percolate inside yourself. यही होना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द की जो परिस्थिति है वो आपके अंदर आपको घुसने नहीं देना है। How will I go there? If I go there, I may get corona infection. मैं वहां कैसे जाऊं? अगर मैं वहां जाऊंगा तो मुझे कोरोना हो जाएगा। Oh my God! If I go to this company and if they are infected, what will I do? अरे अगर मैं इस कंपनी में चला गया और अगर वो सब कोरोना से पीड़ित है तो मैं क्या करूंगा? No. How can I exist everywhere? तो फिर मैं कैसे जिंदा रहूंगा? You see, you need to understand. People outside can get corona. The whole world can get corona. But if you are in the Lord and if you are walking with the Lord, you will be 100% secure. देखो, आपको ये समझना जरूरी है कि ये पूरा जग जो है, ये सारे जो लोग हैं उन्हें कोरोना होगा, लेकिन अगर आप परमेश्वर में हो और परमेश्वर के साथ चल रहे हो तो आपको कोरोना छू भी नहीं सकता। But that does not mean you don't take precautions. इसका मतलब ये नहीं है कि आप सावधानी नहीं बरतें। You maintain, social distancing. आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। Make sure your face is covered. आप ये ध्यान रखिए कि आपका जो चेहरा है वो ढका हुआ है। And make sure you sanitize your old self. और ये भी ध्यान रखिए कि आप खुद को सैनिटाइज करें। And when you come home, take a bath. और जब आप घर आते हो तो आप नहा लो। Amen. आमीन। So don't leave yourself, vulnerable at all. तो खुद को ऐसा ही खुला मत छोड़ो कि आप पर हमला हो। But लेकिन you are victorious. आप विजयी हो। Don't let the fear that is dominating in the minds of the people around you dominate your mind also. जो भय लोगों के मनों में राज कर रहा है, उन पर हावी है, ये ध्यान रखो कि वो जो भय है आपके मनों पे, आपके जिंदगी पे हावी ना हो। So point number 1 is understand situation does not control your state. तो मुद्दा क्रमांक 1 ये है कि ये समझ लो कि परिस्थिति जो है आपकी स्थिति को नियंत्रण नहीं करती। You may even be sold as a slave, you will still be the boss there. आप एक गुलाम करके बेचे जाओगे, फिर भी वहां पर आप बॉस बन जाओगे। Amen. Amen. Wherever you go, you will be the head and not the tail. जहां पर भी आप जाओगे वहां पर आप मस्तक बनोगे और कुछ नहीं। This is the blessing that is in your DNA or the DNA of Jesus. और यही तो आशीष है आपके डीएनए में, और वो जो डीएनए है वो यीशु के द्वारा है। Amen. Amen. That DNA is the DNA of Jesus. वो डीएनए जो है वो यीशु का डीएनए है जो आपको दिया गया है। It's the DNA of victory. वो डीएनए जो है वो विजय का डीएनए And है। if you go wherever you go, और जहां कहीं पर भी आप जाओगे, you are the boss. आप ही बॉस हो। You have to first believe it here. आपको सबसे पहले यहाँ पर उसे विश्वास करना है, Then you have to believe it here. उसके बाद आपको यहाँ पर उस पर विश्वास करना And है, it will be seen through you around you. और फिर आपके द्वारा आपके इर्द गिर्द वो देखा जाएगा। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Point number 2. मुद्दा क्रमांक 2। Now, what matters is the Lord with you? अब क्या मायने रखता है वो ये है कि क्या परमेश्वर आपके साथ है। That's a very important point. ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा Let है। us read verse 2. आइए हम वचन 2 को पढ़ेंगे। And the Lord was with Joseph. उत्पत्ति इसका 39वां अध्याय वचन 2, और यहोवा यूसुफ के संग था। That's simple. बस इतना ही It आसान is है। not that you are with the Lord, but the Lord is with you. ये नहीं कि आप परमेश्वर के साथ हो, लेकिन ये है कि परमेश्वर आपके साथ है। Big difference. बहुत बड़ा फर्क है। Many times, often people say, I pray so much, I sing so much, I have this wonderful time with the Lord, and I have this anointing and this and that and that and this. But that is not important, because the Lord says in His Word in Matthew chapter 7 that I don't know you. और अक्सर और बहुत बार ये होता है कि बहुत लोग ये कहते हैं कि मैं बहुत दुआ करता हूँ, मैं बहुत गाना गाता हूँ, और बहुत अभिषेक है, ये है वो है सब कुछ है, और ये सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर मत्ती इसका 7वां अध्याय में ये कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। Yeah, so what
matters is that the Lord knows you and He is with you. तो क्या मायने रखता है वो ये है कि परमेश्वर आपको पहचानता है और वो आपके साथ है। Now, my point is, how will you know that the Lord knows you? तो अब मेरा मुद्दा ये है कि आप कैसे जानोगे कि परमेश्वर आपको जानता है। How will, see, it says, look at it over here. Verse 3, let us read verse 3 of the same chapter. आइए उसी अध्याय के हम वचन 3 को पढ़ेंगे। उत्पत्ति इसका 39वां अध्याय वचन 3। And his master saw that the Lord was with him. और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। And he didn't say, and his master heard that the Lord was with him. ये यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि उसके स्वामी ने सुना कि परमेश्वर उसके साथ है। Oh, Swami, Parmeshwar मुझे एक is giving me a guidance for you. ओ स्वामी, परमेश्वर यहोवा जो है आपके लिए मुझे कुछ दे रहा है, कुछ दिखा रहा है, मुझे कुछ विजन आ रहा है। हे स्वामी, तुम्हारे लिए मुझे ऐसा कुछ नाटक नहीं किया उसने। Yet all these gimmicks, no, his master saw. उसे ये सारे जो नाटक है उसे नहीं करना पड़ा, लेकिन वचन कहता है कि उसके स्वामी ने देखा। बीच में ही काम करते करते मुझे हंटिंग आ रहा है। कोई पांच वाला नौकर पूछता है, इसको क्या हो गया, क्या मालूम क्या हो गया इसको। क्या हो गया? परमेश्वर मेरे साथ है। ये ऐसा होता है क्या? परमेश्वर के साथ रहता है? ऐसा बोलो स्वामी को। अच्छा ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ, मेरे को अभिषेक आ रहा है। You know that this is, you don't have to do all these stunts. देखो आपको ये सारे जो नाटक है और ये जो कृति है आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। People of God, परमेश्वर के लोग, the problem with us is we don't exactly know how to understand that the Lord is with me. समस्या हम लोगों के साथ ये है, हम सारे लोगों के साथ ये है कि हम ये समझ नहीं पाते कि कैसे समझना है कि परमेश्वर मेरे साथ है। How will I know that? कि मैं ये कैसे पहचान It पाऊंगा? says over here, यहाँ पर कहता है verse 3, वचन 3, and the Lord made all that he did to prosper in his hand. और जो कुछ भी काम वह करता था या जो कुछ भी काम उसके हाथों में वो लेता था उसका यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता था। For example, if this was a failure in his hand, उदाहरण के तौर पर अगर ये जो है मेरे हाथों में असफल रहा, then the moment it is transferred in the hand of तो Joseph, जैसे ही इसे यूसुफ के हाथों में दिया जाता था it was a success. वो सफल हो जाता था। That is how his master came to know इसी वजह से उसके स्वामी को समझ में आया that the Lord is with him. कि परमेश्वर उसके साथ है। Now listen. अब सुनो, See, the world does not understand anointing equal to God. देखो ये जो जगत है, ये जो पूरी सृष्टि है, जो जग के जो लोग हैं वो ये नहीं समझते कि अभिषेक इसका मतलब परमेश्वर संग रहना। No, नहीं, they don't understand that. वो ये बिल्कुल नहीं समझते। How does the world understand पर ये सारे जो लोग हैं वो कैसे समझते हैं that the Lord is with you? कि परमेश्वर आपके साथ है? When they see prosperity, when they see success in your life जब वो and through your life. जब वो आपके जिंदगी में और आपके जिंदगी के द्वारा सफलता और समृद्धि वो देखते हैं तब वो समझते हैं। Now, that's how they come to know that you are prosperous, that the Lord is with you. और तब उन्हें समझ में आता है कि परमेश्वर आपके साथ है। Now, अब the problem with us is हम लोगों के साथ समस्या ये we है, pray so much हम इतनी दुआ करते हैं and we are unsuccessful. और हम असफल रहते हैं। We pray so much हम इतनी दुआ करते हैं and we are unsuccessful. और हम असफल रहते हैं। We pray so much हम इतनी दुआ करते हैं and we are in lot of debts. और हम बहुत ही कर्जे में हैं। We pray so much हम इतनी दुआ करते हैं and we don't have any prosperity. और हमारे जिंदगी में समृद्धि है ही नहीं। And we pray so much. और हम इतनी दुआ करते हैं, We read the Bible so much. हम बाइबल को वचन को इतने पढ़ते हैं, We put stickers all over the house so much. हम हमारे सारे घरों में वचन के इतने स्टिकर लगा देते हैं And so many stickers on our car also. और हमारे गाड़ियों पर भी स्टिकर लगा देते हैं Everywhere we have got so many stickers of the Lord. और परमेश्वर के इतने सारे स्टिकर हर
जगह पर होते हैं and we still don't have prosperity nor success, nothing, only failure. और फिर भी हमारे जिंदगी में हम ना सफलता पाते हैं और ना समृद्धि देखते हैं, लेकिन सिर्फ हम असफलता देखते हैं। Now, अब the world does not understand. ये जग जो है उन्हें समझ में नहीं आता। How can people of God, if their God is a living God, how can they be so unsuccessful? कि अगर परमेश्वर जो है वो अगर जिंदा खुदा है तो उसके लोग इतने असफल कैसे रह सकते हैं? How can they be asking money from us? कैसे क्या वो हमसे पैसे मांग सकते हैं? How can they be in so much poverty? वो कैसे क्या इतने गरीबी में रह सकते हैं? Is their God so horribly defeated? क्या उनका परमेश्वर इतनी बुरी तरह से हारा हुआ है? See, the problem is, देखो समस्या ये है, we try to show the wrong signs to the world that God is with us. देखो हम गलत चिन्ह इन सारे जग के लोगों को दिखाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। I'll give you a small example. मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। Imagine you got a dog कल्पना करो आपके पास एक कुत्ता है and he's a Rottweiler, और वो एक रॉटवाइलर है and you have petted him to guard your bungalow. और आपने उसे पाला पोसा है कि आपका जो बंगलो है उसकी वो रक्षा करे। Now, अब when the robber comes, जब चोर आते हैं, this dog has a unique quality. इस कुत्ते में एक विशेष गुणवत्ता है. गुणवत्ता है, गुण है, गुण है. And the quality is, और वो गुण ये है, he doesn't bark. ये भौंकते नहीं। He doesn't bark. ये कुत्ता वो कुत्ता भौंकता नहीं, He doesn't bite. वो काटता नहीं, He smiles when the robber comes. लेकिन जब चोर आते हैं ये मुस्कुराता है। Now tell me, अब मुझे बताओ, what will you say to that Rottweiler who's yours? उस रॉटवाइलर कुत्ते को जो आपका है उसे आप क्या कहोगे? जो चोर आने पर भौंकता नहीं, काटता नहीं, लेकिन मुस्कुराता है. What will you say to him? आप उसे क्या कहोगे? Will you say he's a Rottweiler? क्या आप ये कहोगे कि रॉटवाइलर है? Or will you say he's a Labrador? What is he? तो क्या फिर आप ये कहोगे क्या ये लैब्राडोर है? ये क्या है? ये कौन है? ये कौन है? Amen? आमेन। That's exactly what people think about us. यही लोग हमारे बारे में सोचते हैं। When you say my God is a living God, जब आप कहते हो कि मेरा परमेश्वर जिंदा खुदा है, and when they see our state, और जब वो हमारे स्थिति को वो देखते हैं, they understand वो समझ जाते हैं something is wrong. कुछ तो गलत है। That's why they don't come to the Lord. और इसी वजह से वो परमेश्वर के पास नहीं Let me आते। tell you something. मुझे आपको कुछ बताने दो। Had Joseph been after Jesus Christ, after the Lord's resurrection, अगर यूसुफ यीशु के पुनरुत्थित होने के बाद अगर होता तो let me tell you something. मुझे आपको कुछ बताने दो। Potiphar would have been saved. पोटिफर जो है उसका उद्धार होता। Amen. आमेन। For the next part, click on top here. और अगले भाग के लिए यहाँ पर ऊपर आप क्लिक कीजिए। God bless you, everybody. परमेश्वर आपको आशीष Love दे। you all. आप सबसे प्यार करता हूँ। Next part is continued, please. और अगला भाग जो है जल्दी वो आ रहा है। Lord, I give it people in your hands, Lord. परमेश्वर सारे लोगों को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। Help the people to bring forth 400-fold according to today's word. और आज के वचन के अनुसार उन्हें मदद करके वो 100% फल ले आए। I seal this word in their hearts with the precious blood, precious oil, and the fire of the Holy Ghost. और इस वचन को परमेश्वर में उनके दिलों में मैं सिंचित करता हूँ, उसे सील कर देता हूँ अभी पवित्र तेल से, पवित्र रक्त से और पवित्र आत्मा की अग्नि से। In Jesus' name I pray and I ask. यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, मांगता हूँ। Amen. आमीन।